तो फिर कैसे करेंगे? देन हाउ, राइट? दैट्स वेयर लोड बैलेंसर सर्विस केम इन पिक्चर। ठीक है, यहां पे लोड बैलेंसर सर्विस पिक्चर में आएगी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोड बैलेंसर सर्विस? सो लेट्स से दिस इज योर कंट्रोल प्लेन, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3। ठीक है, ये वर्कर नोड है। यू डिप्लॉय द पॉड हियर। नाउ यू आर ट्राइंग टू डिप्लॉय a service of load balancer type। ठीक है, सो क्या होगा? when you deploy load balancer type service, this entire Kubernetes is managed by EKS service। जैसे ही आपने load balancer service यहां पे डिप्लॉय की, what is going to happen? Amazon Cloud will deploy a real load balancer, that means a real लोड बैलेंसर हियर। वो लोड बैलेंसर क्या होगा? एक मशीन है, एक मशीन है जो यहाँ पे चल गई। एंड दैट लोड बैलेंसर विल हैव सम नेम और आईपी, एंड दिस लोड बैलेंसर विल बी कॉन्फ़िगर्ड ऑटोमेटिकली टू डंप द ट्रैफिक ऑन योर वर्कर नोड with their node port number। ठीक है, क्या होगा? जैसे आपने लोड बैलेंसर सर्विस बनाई तो यहाँ पे एक रियल में लोड बैलेंसर डिप्लॉय हो जाएगा और ये पॉइंट करेगा उस नोड पोर्ट को जो आपके मेनियन नोड पे इस सर्विस ने बना दिए हैं। तो यूजर क्या करेगा? यूजर एक्सेस करेगा इस आईपी नाम को और ये लोड बैलेंसर कहां भेजेगा? इधर। So we are directly not allowed to hit this, will hit this, and this will hit this। यदि ये समझ में आया तो कृपया यस मैसेज टाइप करें। Fine. So type yes message in the chat window. I can say Harsh, Sonu and Monu, Riya। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसलिए लोड बैलेंसर सर्विस बनाई गई थी। ओके, वंडरफुल। Definitely when the load balancer will be created, so additional charges तो होंगे ही होंगे, right? You have to pay for this। and वैसे भी if a company is hosting a website like Tinder or Paytm or games, so for them performance of website is more important as compared to charges। Yes, so we are accessing our application from load balancer। ठीक है, all right। ठीक है, अब अगर ये समझ में आया है तो मैं आपको इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूं। सी, आई एम गोना टेल यू वन मोर थिंग। वैसे भी हाउ वी आर एक्सेसिंग आवर एप्लीकेशन रनिंग इन Kubernetes लाइक दिस। कैसे एक्सेस कर रहे हैं? IP and colon some port number। So in the real world, people are not accessing any website or application by IP port। Nobody accesses that। They always type some name। Let's say if you talk about Google, we never type Google IPN port। We type www.google
.com. We always hit a name, then we get IP and automatically got happen. So nobody access application like this, the one we are accessing, right? So people are accessing by typing the name. Fine. So today I'm going to show you how exactly we can configure the same thing. Although maybe you won't be able to do the practical in your own laptop, same thing, but I can show you. ठीक है, ये बात भी समझ में आ रही ना कि कोई भी आईपी एंड पोर्ट यूज करके एप्लीकेशन एक्सेस नहीं करता, लिटरली कोई नहीं करता. ओके, सो हमें कैसे एक्सेस करना है? ऐसे. ओके, so say final yes message in the chat window, then I'll create a final picture of Kubernetes application access process, and then we'll do that. Okay, कैसे करना है ये मैं भी बताता हूं करके, but I need your approval that yes, you guys are understanding it well. Fine, great. Okay. No horse. Your balancer will provide DNS, but that is not a useful thing. Fine. तो मैं क्या करने वाला हूं, बिल्कुल हर्ष आपकी बात सही है. Now what is the reality? I'm having this master machine, and here is my worker 1 and worker 2. They all are connected. ठीक है, they all are connected. So for example, if I'm going to show you, I have one master and 2 workers. Fine. Yeah, Sonu, we can, but we don't need to use that. ये है, and as of now my application is running here. Fine. So what I did, I create a deployment. That deployment created a single pod. That pod is running here. Fine. So this is very much clear as of now. I have let's say, let me delete everything actually. Delete all -- all. So I'm waiting for just cleaning up all the existing services so that we can have a clear picture of it. Okay. So boom, waiting and waiting. हो जाए यार, क्या कर रहा है? Okay, wonderful. See, now I have this day30.yml. तो मैं क्या करता हूँ, I'm just gonna deploy this deployment, apply -f day30. Fine, and I have this get deployment 1. Let me scale this. I hope scaling मैंने बताई होगी. We can scale deployment name
and hyphen replica, let's say 5. So as of now I have 5 of the pod, 5 pods, and these pods are running across my worker nodes. ठीक है, तो कोई इशू है नहीं, ये सारे के सारे pods चल रहे हैं and I am exposing a deployment with the type of load balancer 80 port. ठीक है, get svc and I am having 30515. ठीक है, अब यहां देखना guys, प्लीज सब लोग यहां देखना, it's very important. When I expose deployment type load balancer, so अभी इस Kubernetes master को क्या लग रहा है कि Kubernetes master एक load balancer deploy करेगा और इस load balancer का जो भी नाम या IP आएगा वो इसको सर्विस में मेंशन कर देगा. सी, तो जब भी आप हमेशा लोड बैलेंसर टाइप की सर्विस बनाते हैं तो Kubernetes मास्टर को लगता है कि ये लोड बैलेंसर टाइप एक रियल में लोड बैलेंसर बनाएगा, उसका जो भी आईपी नाम आने वाला है वो सर्विस में लिखेगा. इसीलिए हमेशा यहाँ आता है पेंडिंग, राइट. सी, सर्विस का आईपी आ गया, बट योर एक्सटर्नल आईपी मीन्स आईपी एड्रेस ऑफ लोड बैलेंसर, because this is an external machine outside Kubernetes cluster. So ये हमेशा क्या आएगा, पेंडिंग. क्यों पेंडिंग आएगा? Because this cluster is managed by us, I mean by me, not by EKS. If EKS would have managed this cluster, तो ये बैलेंसर बनता और आईपी आता भी. But this cluster is managed by me. और मैंने तो कोई बनाया नहीं लोड बैलेंसर, तो Kubernetes की हैबिट है कि उसको लगता है कि कभी बन के यहाँ पे आएगा, इसलिए हमेशा लाइफ टाइम ये पेंडिंग ही दिखाएगा. तो शायद किसी ने काफी टाइम पहले पूछा था कि व्हाई दिस एक्सटर्नल आईपी इज पेंडिंग शोइंग हियर, राइट. आंसर मिल गया होगा शायद, या समझ आ गया कि एक्सटर्नल आईपी पेंडिंग क्यों दिखा रहा है. बिकॉज Kubernetes master node trying to find the IP address of load balancer जो मिल नहीं रहा, क्योंकि ये क्लस्टर कौन मैनेज कर रहा है, मैं कर रहा हूं या आप लोग कर रहे हैं. ठीक है, अगेन एक और छोटा सा यस बनता है यहाँ पे, यदि ये बात समझ में आ रही है कि पेंडिंग आईपी जो 30515 पे दिख रही है, ये क्यों दिख रही है. ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है. When you deploy load balancer type service in your Kubernetes cluster that is managed by you, why external IP is pending. ठीक है, great. So now what we need to do, let's say I am going to create a load balancer manually, right. बिल्कुल. So now I am going to create this load balancer manually. Fine. अगर आप लोड बैलेंसर नहीं बनाएंगे तो आपको एप्लीकेशन हमेशा 30515 यानी कि ऐसे एक्सेस करनी पड़ेगी. 30515 जो कि डेफिनेटली कोई नहीं चाहता ऐसे एक्सेस करना. ठीक है, हम वी डोंट वांट टू एक्सेस लाइक दिस. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज no. What I am going to do is I am going to create a load balancer by myself manually. So what I'll do, I'll go to my Amazon cloud and in the load balancer section, yeah, so this is my load balancer section. What I do, I create a load balancer of previous generation. मैं इसको नाम देता हूं ad hoc K8s
एंड अब इस लोड बैलेंसर को हमें बताना पड़ेगा कि पीपल विल कनेक्ट टू HTTP प्रोटोकॉल। बिकॉज होता क्या है, जब भी हम google.com या कुछ भी एक्सेस करते हैं तो ये हमेशा या तो HTTPS में चलेगा या फिर HTTP में चलेगा, ठीक है, ऐसे कुछ। तो लोग क्या करेंगे, लोग कनेक्ट करेंगे लोड बैलेंसर को HTTP प्रोटोकॉल पे, लेकिन लोड बैलेंसर आपके इंस्टेंस मतलब वर्कर नोड को किस पोर्ट पे कनेक्ट करेगा? लोड बैलेंसर आपके वर्कर नोड को 300 और 30515 पे कनेक्ट करेगा। एंड द रीजन इज, सी माय नोड पोर्ट इज 30515। तो मतलब क्या हुआ कि जो लोड बैलेंसर बनेगा, ये मास्टर, ये वर्कर, इस वर्कर पे 30515 है, यहां पे भी 30515 है। तो we as a normal user will connect via HTTP protocol to your balancer, and your balancer will connect to again HTTP protocol, बट जो ये वर्कर नोड है इनके किस पोर्ट पे करेगा? 30515 पे, बिकॉज फॉर माई एप्लीकेशन द पोर्ट नंबर इज दिस, ठीक है। तो यहां मुझे इंस्टेंस प्रोटोकॉल में 80 हटा के लिखना पड़ेगा 30515। ये लाइन आई होप समझ में चाहिए। दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, वी आर कनेक्टिंग टू HTTP प्रोटोकॉल, क्योंकि HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80। तो लोड बैलेंसर के किस पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे? इस पे। और लोड बैलेंसर जो आपका इंस्टेंस है, इंस्टेंस मतलब ये, इसको कहां फॉरवर्ड करेगा? 30515 पे, ठीक है। तो ये लाइन समझ में आनी चाहिए। आ रही है तो मैं आगे बढ़ जाऊं फटाफट, बिकॉज ये सारी चीजें इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवऑप्स इंजीनियरिंग या क्लाउड इंजीनियरिंग एंड ऑल, ओके। सो गिव योर रिस्पॉन्स इन अ वेरी फटाफट वे इन द यूट्यूब चैट विंडो, ठीक है। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत अच्छे। So I can say 1, 2, 3, 4, 5 messages, 6 messages. Yo. Okay. कुछ कम मैसेज आए हैं वैसे। Okay, great. So I'm just clicking on the next. ठीक है, जिसमें से हम छोड़ो सिक्योरिटी ग्रुप को ऐसे रहने देते हैं। HTTPS में कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हेल्थ चेक, इसका आपके जीवन से फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं है, और यदि कोई मतलब होगा तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो इसको आप छोड़ दो, अभी कभी पढ़ेंगे लोड बैलेंसर तो समझ में आएगा। और मैं दोनों मिनिमम नोड को ऐड कर देता हूं कि 150 सेकंड के अंदर आप हो जाना, या 100 सेकंड के अंदर, ठीक है। मिनियन 1, मिनियन 2 एंड गिव नो टैग, रिव्यू एंड क्रिएट। सी, तो पता है जो मैंने किया अभी मैनुअली, दिस स्टेप विल बी राइट, दिस स्टेप विल बी ऑटोमेटिकली परफॉर्म बाय EKS, अगर ये EKS ने किया तो, राइट। वेरी गुड रिदम, इफ यू नो, दैट इज वंडरफुल। सो अगर EKS नहीं होता तो ये अपने आप हो जाता, ठीक है।